Hello everyone, my name is Shelja Chabra, your English educator from World Student Scope. So today we are going to do question and answers of chapter My Elder Brother from NCERT book of class 5 and the book name is Marigold. So we are going to start with the summary first. Let's start with the summary of My Elder Brother. तो इस वाली स्टोरी के अंदर माई एल्डर ब्रदर में देर आर टू ब्रदर्स एंड दिस स्टोरी बिगिंस विथ टू ब्रदर्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. In this story, the younger brother is the narrator and the narrator is 5 years younger than his older brother. Also, the elder brother is known as Bhaiya in this story is 3 grades ahead of the younger brother. Both the brothers live in a hostel and having different opinions. The elder brother is hardworking who studies very hard, but he wishes to build a strong foundation through his education, and the younger brother prefers playing all the day and don't study much. In this play, the elder brother always scolds his younger brother to be more sincere. The story tells us about their lives and their relationships between the two brothers. Moral of the story is we should always respect our elders and listen to them because they are more experienced than us. They have practical knowledge of their life. तो दिस वॉज द स्टोरी अबाउट टू ब्रदर्स. तो ये स्टोरी हमने लास्ट वीडियो में कर ली है एंड वी हैव डन द समरी ऑल्सो एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू वर्ड्स एंड द क्वेश्चन एंड आंसर्स. लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड न्यू वर्ड्स. New words. Foundation means solid base. Schedule means the timetable. And essay means the composition on any subject. Idling means without any purpose or lazy. And the mastered means gained expertise or skilled. These were the new words. बाकी उसके अलावा और भी ज़्यादा वर्ड्स होंगे, उनको आप हाईलाइट कीजिए बुक के अंदर, उनको मार्क कीजिए और आप उनके मीनिंग्स देखिए कि क्या मीनिंग्स इनके हो सकते हैं. ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं रीडिंग इज फन. तो अब इसमें क्या है, व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू. जो मुन्ना क्या करना चाहता था इसमें हमें बताना है. दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर्स. वी हैव टू राइट द आंसर्स. व्हाट आर द थिंग्स दैट मुन्ना लाइक टू डू. मुन्ना लाइक टू प्ले मार्बल्स. Play marbles, play kites, play volleyball, and kabaddi, and also draw pictures, he likes to do drawing. And what did भैया do all the day. भैया क्या करते हैं सारा दिन. तो भैया read books all the day. भैया read books all day. Next is, why was Munna not happy with the timetable that Bhaiya made for him? The reason was Munna was not happy with the timetable
that bhaiya made. Because there was no time to play. क्योंकि खेलना तो सबको पसंद है ना, आपको भी पसंद है ना खेलना, प्ले करना पसंद है, लेकिन भैया ने तो उसमें प्ले टाइम ही नहीं रखा था, तो दैट वाज द रीजन कि उसको ये टाइम टेबल बिल्कुल भी पसंद नहीं था. नेक्स्ट इज, हाउ डू यू थिंक मुन्ना फेल्ट व्हेन हिज ब्रदर वाज सो स्ट्रिक्ट. उसको मुन्ना को क्या लगता है जब वो उसके भैया जो इतने ज्यादा उससे स्ट्रिक्ट हो जाते हैं. मुन्ना felt like running away as the brother was so strict. Okay. Why was भैया so strict with him? भैया इतने strict क्यों थे उसके लिए? भैया was so strict with him because he did not study much, and always play. Whose character do you like more, Munna's or Bhaiya's? I like Munna's character. Because he likes to play and enjoy his life with complete fun. He was respectful towards Bhaiya. He was also respectful towards Bhaiya. Now other questions. How many periods do you have a timetable at school? क्या तुम्हारे स्कूल में कोई टाइम टेबल बना हुआ है? तो इसमें क्या है, आपको टाइम टेबल के बारे में कुछ राइट करना है. हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर फॉर द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज इन 1 वीक. आपके 1 वीक के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं और कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं 1 वीक में. तो यू हैव टू राइट कितने पीरियड्स होते हैं इंग्लिश के. सपोज आपके मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसमें डेली आपका एक इंग्लिश का पीरियड तो होता ही होता है. सो यू कैन राइट 6. और हिंदी के भी 6 होते ही होते हैं. ठीक है, डेली पीरियड होता है. देन मैथ्स का तो डेली होना बहुत ज़रूरी है. अगर डेली नहीं होगा प्रैक्टिस तो प्रॉब्लम हो जाती है. देन साइंस में भी 6 पीरियड्स होने ही चाहिए. देन एसएसटी के भी 6 होते हैं. देन गेम्स के आपके 4 होने चाहिए. उसका रीज़न ये है कि अगर आपके 4 पीरियड्स नहीं होंगे या 3 होंगे, 2 होंगे या 1 होगा, आपको गेम्स प्ले करने का टाइम नहीं मिलेगा. फाइन, आधा दिन तो आपका स्कूल में निकल जाता है, तो वो हाफ डे बीच में आपको रिलैक्सेशन टाइम भी चाहिए होता है. सो
4 पीरियड्स आपके गेम्स के भी होने चाहिए। देन 3 आपके किस किस का इंटरेस्ट आर्ट और ड्राइंग में है तो आप बता सकते हैं। देखो इसमें 3 पीरियड्स आपके आर्ट और ड्राइंग के होने चाहिए, देन 2 आपके क्राफ्ट के भी होने चाहिए, 4 आपके म्यूजिक के पीरियड्स भी होने चाहिए, ठीक है। और डांस के पीरियड्स भी आप समझ लो 1 या फिर 2 जो भी है। और आप अपना टाइम टेबल खुद देखिए, उसके अंदर आपके कौन कौन से पीरियड्स कितने होते हैं। एंड एनी अदर एक्टिविटी, सपोज आपका हाउस है या किस तरह के आपकी एक्टिविटीज होती हैं, तो वंस अ वीक आपकी वो भी एक्टिविटीज, कुछ डिफरेंट एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 71 पे ही है। नाउ मेक अ टाइम टेबल फॉर योर सेल्फ इंक्लूडिंग योर स्टडी टाइम एंड योर प्ले टाइम। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना है, जिसके अंदर आपको इंक्लूड करना है स्टडी टाइम भी और आपका प्ले टाइम भी, दोनों तरह के आपको इसके अंदर टाइम देना है। तो आप समझ लो यहाँ पर आप राइट करते हो डेज, ये टाइम टेबल आपका खुद ही है, खुद ही बनाना है, फाइन। तो आप यहाँ पर राइट करोगे डेज, ठीक है। और आपके टाइमिंग्स देखो, मॉर्निंग 7 to 2 आपका स्कूल टाइम होता है। सो आप यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, और संडे आपका, ठीक है। और देन ये 7 डेज आपके हो गए हैं। देन आपका 7 to 2 आपके स्कूल, ओके, ये ऑल द डेज आर स्कूल, ओके। और संडे आप अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट करो। देन उसके बाद आप 2 to 4 आपको रेस्ट टाइम भी चाहिए। आप जब स्कूल से आते हो तो आपको लगता है कि मुझे 2 आवर्स का रेस्ट भी चाहिए, देन रेस्ट टाइम। और उसके बाद आप 4 o'clock आप उठोगे, देन आपको अपना होमवर्क करना है, होमवर्क टाइम भी चाहिए आपको चाहिए। देन 5 to 7 आपका प्ले टाइम भी होना चाहिए। आपके सारे फ्रेंड्स आते हैं ना प्ले करने के लिए, तो मे बी ये 5 to 7 का ही टाइम होना चाहिए प्ले टाइम। देन 8 to 10 आपका, या 7 to 10 आपका स्टडी टाइम होना चाहिए, या फिर 7 to 9 आपका स्टडी टाइम एंड 9 to 10 आपका ईटिंग टाइम, डिनर टाइम, ठीक है, डिनर टाइम। एंड ये आपका स्टडी टाइम, आपको एक्स्ट्रा स्टडीज भी करनी होती हैं, फाइन। तो स्टडी टाइम, तो ये आपका मंडे टू सैटरडे का डेली का आपका ये टाइम टेबल हुआ। देन संडे इज ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम, जस्ट बिकॉज कि आपका संडे आपका ये जो टाइम पीरियड है, आप इसमें अपना स्टडी टाइम इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है, स्टडी टाइम। और अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो कि प्ले टाइम आपका क्या होना चाहिए। तो आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है स्टडी टाइम और प्ले टाइम के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 72 पे। इसमें पेज नंबर 72 पे है क्रिएटिव राइटिंग। द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज गिवन टू यू। इसके अंदर आपको फॉर्मेट दिया हुआ है लेटर का। लेटर्स टू फ्रेंड एंड क्लोज फैमिलीज आर रिटन इन द सेम वे एज यू स्पीक टू देम। तो आपके जो लेटर्स होते हैं इनको आपके जो फॉर्मल लेटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी होती है। और जो दूसरे लेटर्स होते हैं जो आप अपने क्लोज फ्रेंड्स को या फैमिली को आप उनको लिखते हो, तो वो इस तरह से लेटर लिखा जाता है जैसे आप नॉर्मल उनसे टॉक कर रहे हो, आप जैसे उनसे नॉर्मली स्पीक करते हो। तो ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसके अंदर कि आप कैसे आपको इसके अंदर लिखना होता है आपका लेटर। ये आपका इनफॉर्मल लेटर है, उसका फॉर्मेट दिया हुआ है। देखो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करते हैं दैट इज विद द एड्रेस। ये आपने अपना एड्रेस लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद एक लाइन आपकी ब्लैंक होती है, नेक्स्ट लाइन आपकी ब्लैंक होगी। देन आपको यहाँ पर राइट करनी है डेट। उसके बाद आप फिर से आपकी एक लाइन ब्लैंक होती है, और उसके बाद आप राइट करोगे यहाँ पर, आप ग्रीट करोगे आप अपने जिसको भी आप राइट कर रहे हो। सपोज आप इसमें डियर माँ लिख रहे हो, या डियर पापा लिख रहे हो, या चाचू चाची दादू दादी किसी को भी आप राइट कर रहे हो। इवन आप अपने फ्रेंड्स को राइट करते हो लेटर्स,
तो आप किसी को भी आप राइट करते हो तो यहाँ पर उनका नेम लिख सकते हो। जैसे कैसे आप उनको ग्रीट करते हो वैसे। फिर उसके बाद आप एक लाइन और ब्लैंक करोगे, ब्लैंक छोड़ोगे, देन आप राइट करोगे इसकी इंट्रोडक्शन, कि आप कैसे उसको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो। दिस इज माई फर्स्ट लेटर, इसमें क्या लिखा है देखो, इसके अंदर जो है राइट एड्रेस, अगर आप अपना एड्रेस नहीं लिखना चाहते तो आप इसमें लिख सकते हो एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। और उसके बाद आप अपना एक लाइन ब्लैंक छोड़ के फिर आप अपनी डेट लिखिए, एक लाइन ब्लैंक छोड़ के आप ग्रीट कीजिए, उसके बाद आप राइट करते हो इंट्रोडक्शन। दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस, वी स्टार्टेड अवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच द हॉस्टल, आई हैव सेटल्ड इन वेल। तो आप ये पहले इंट्रोड्यूस करते हो, उसके बाद आप बॉडी ऑफ लेटर लिखते हो। बॉडी ऑफ लेटर में क्या आता है कि आप एग्जैक्टली आप क्या लिखना चाहते हो, आप किस बारे में आप ये लेटर लिख रहे हो, उसको कहते हैं बॉडी ऑफ द लेटर, ठीक है। दिस इज द बॉडी ऑफ द लेटर एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद आप एंड करते हो, किसी भी चीज का आप एंड करते हो तो कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें आप राइट करोगे, इट इज नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स, आई रिमेंबर यू एंड बाबा अ लॉट, गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर। दिस इज द एंड ऑफ द लेटर। उसके बाद आप लिखोगे डू राइट बैक सुन, और फिर आप लिखोगे योर लविंग सन, तो और नीचे आप अपना नेम राइट कर सकते हो। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द लेटर, फाइन। तो इसके बाद उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसी के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसी के बेसिस पे हु हैज रिटन द लेटर। देखो इसमें जो लिखा हुआ है हु हैज रिटन द लेटर, इसमें आपका है प्रताप, प्रताप ने ये लेटर लिखा है। इसमें मेंशन्ड है कि ये लेटर जो है ये किसने लिखा है, तो आप इसमें लिख सकते हो प्रताप, क्योंकि लास्ट में लिखा है योर लविंग सन प्रताप, तो आप इसमें लिखोगे प्रताप। टू whom हैज द लेटर बीन रिटन, किसको लिखा गया है, ये लिखा है मम्मा को, माँ को, ठीक है। वेयर इज द राइटर ऑफ द लेटर, कहाँ है, ही इज इन द हॉस्टल। व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉस्टल, हॉस्टल का नेम क्या है वो उसमें ऊपर ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप उसको देख के आप लिख सकते हो, कृष्णा बॉयज हॉस्टल। ऑन विच डेट वॉज दिस लेटर रिटन, इसमें ऑलरेडी डेट मेंशन्ड है, आप इसमें लिखोगे 10th जुलाई। नाउ राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड और रिलेटिव, write a letter to your friend or relative in another city telling him or her about activities or events in your school, follow the same pattern as the above letter। देखो जो पैटर्न उन्होंने बताया है पहले वाली लेटर में, मतलब इस वाली लेटर में जो भी आपका पैटर्न बताया है वही सेम पैटर्न आपको यहाँ पर फॉलो करना है, और आप अपने फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को आपको ये लेटर लिखनी है। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था एड्रेस, देन हमने राइट किया था इसमें डेट, हमने इसमें बीच में एक लाइन भी ड्रॉप की थी, एक लाइन ड्रॉप की थी। देन उसके बाद हम लिखते हैं, हम उनको ग्रीट करते हैं, कैसे ग्रीट करेंगे, डियर फ्रेंड, फ्रेंड का नेम आप राइट कर सकते हो, ओके। फिर उसके बाद आप यहाँ पर इंट्रोडक्शन लिखते हो,
उसके बाद आप बॉडी ऑफ द लेटर लिखते हो। बॉडी ऑफ द लेटर लिखने के बाद आप उसका एंड लिखते हो। एंड लिख के आप लिखोगे योर्स फ्रेंड, और नीचे आप अपना नेम राइट करोगे। ओके एंड और यही आपको पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करना है और आप अपनी लेटर आप राइट कर सकते हो। लेट्स मूव ऑन द पेज नंबर 74। तो अब इसमें है ये कॉम्प्रीहेंशन आपको बताया है। एग्जैक्टली कॉम्प्रीहेंशन होता क्या है, इसमें आपको ये पैसेज दिया हुआ है। ये पैसेज आपको रीड करना है, उसे समझना है और उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फिर हम उन क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले हम कॉम्प्रीहेंशन रीड करते हैं। Oliver was a 9-year-old boy. He lived with other homeless boys in an orphanage. He was pale and thin, as we were the other boys living there. This was because they had to work hard but were never given enough to eat. The owner of the orphanage, Mr. Bumble, was a cruel man and he ill-treated the boys. तो ये जो ओलिवर एक ना 9 इयर्स का बॉय है, वो वहां पर रहता है ऑर्फनेज में। ऑर्फनेज किसको कहते हैं? अनाथालय को बोलते हैं। तो जहां पर अनाथ बच्चे रहते हैं जिनके मम्मा पापा नहीं होते हैं, वो लोग ऑर्फनेज में रहते हैं। ही वॉज पेल, वो पीला पड़ा हुआ था, बिल्कुल पतला सा था। और वहां पर ऐसा क्यों था? क्योंकि उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था और उनको खाने को भी पूरा नहीं मिलता था। और जो ऑनर था ऑर्फनेज का, मिस्टर बम्बल, वो एक क्रूअल मैन था और इल ट्रीट करता था बॉयज को। द बॉयज वर ऑलवेज हंग्री, जो बॉयज थे वो हमेशा हंग्री रहते थे, हमेशा भूखे रहते थे, उनको भूख लगती रहती थी। इट वॉज ट्रू दैट दे वर गिवन देयर 3 मील्स अ डे, बट ईच मील कंसिस्टेड ओनली ऑफ अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। सिर्फ उनको डेली एक बाउल मिलता था, एक एक बाउल सूप का मिलता था। और उसके बाद लिखा है कंसिडर्ड ओनली अ बाउल ऑफ वाटरी सूप। दे वर ऑलमोस्ट स्टार्विंग, वो हमेशा स्टार्व ही रहते थे, मतलब उनको भूख लगती ही रहती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड बाय देम टू आस्क द मास्टर फॉर मोर सूप। उन्होंने सोचा कि अब हम और ज्यादा सूप इसमें सूप उनसे ऑर्डर, हम उनको बोलेंगे कि हमें और ज्यादा सूप दे दो। बट हु वुड बेल द कैट, कि बिल्ली के उसमें गले में घंटी बांधेगा। ये स्टोरी तो आपने सुनी होगी। फाइनली द टास्क फेल टू ऑलिवर, तो उसके बाद सबने ये टास्क दिया किसको? ऑलिवर को। ऑलिवर को ये टास्क दे दिया गया। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं हम। When all the boys had assembled in a cold stone hall for their for their evening meal, the soup was served. और उसके बाद सूप उनको सर्व किया गया। It soon disappeared, और फटाफट खत्म हो गया। The boys whispered to one another and one boy pushed Oliver a little. तो उसके बाद एक बच्चे ने उसको पुश किया कि जाके बोल उनको कि मुझे सूप और चाहिए। ऑलिवर मेकिंग अ ब्रेव एफर्ट, और ऑलिवर ने एक बहुत ही ब्रेव एफर्ट दिखाया, स्टूड अप, खड़ा हो गया। वॉकड अप टू द मास्टर, और उसके बाद मास्टर की तरफ गया। विद हिज बाउल एंड स्पून इन हिज हैंड, उसके बाद बाउल लिया और साथ में स्पून था उसके हैंड में। एंड सेड ट्रेम्बलिंग, प्लीज सर आई वांट सम मोर। तो उसके बाद उसने बोला कि प्लीज सर, मुझे थोड़ा और चाहिए सूप। वाई डिड ऑलिवर लिव इन ऑर्फनेज, ऑलिवर जो था, अब हम इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चंस करेंगे कि जो ऑलिवर था वो ऑर्फनेज में क्यों रहता था। तो आप इसका आंसर लिखोगे बिकॉज ही वॉज होमलेस, बिकॉज ही वॉज होमलेस। हु वॉज मिस्टर बम्बल? Who was Mr. Bumble? Bumble was the owner of orphanage, of this orphanage. ORPHANAGE. He was the owner of the orphanage.
What meals were the boys given? उनको क्या खाना मिलता था? A bowl of watery soup. A bowl of watery soup. Soup. And the last question is इसमें what did Oliver say to Mr. Bumble? Oliver ने क्या कहा Mr. Bumble को? Please sir, give me more soup. Okay. The boys were given 3 meals a day. जो boys थे उनको 3 meals दिए जाते थे पूरे दिन में. Then why were they always hungry? वो हमेशा फिर भी भूखे क्यों रहते थे? उनको भूख क्यों लगती रहती थी? Because the soup they were given was never enough. Because they worked very hard all day long. Because the older boys drank up their soup. नहीं, इन दोनों में से तो कुछ भी नहीं है. Then because the soup they were given was never enough. उनको सूप ही बहुत कम मिलता था. फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज दैट मीन द सेम. अब जो पैरा नंबर आप उसमें आप बैक करके आप देख सकते हो कि जो पैरा नंबर 2 है उसके अंदर वेरी हंग्री उसका एक और मीनिंग दिया गया है. एक और कोई वर्ड दिया गया है आपको उसमें फाइंड आउट करना है जिसका मतलब हो वेरी हंग्री. तो वो वर्ड है आपका स्टार्विंग. स्टार्विंग का मीनिंग होता है वेरी हंग्री. टू वेनिश ये पैरा नंबर 3 पे है. तो इसका मीनिंग इसको हम बोलते हैं डिसअपियरिंग. डिसअपियर ही वेनिश यानी खत्म हो गया. ऑल द बॉयज असेंबल्ड द कोल्ड स्टोन हॉल. हेयर द वर्ड असेंबल्ड मीन्स इसके अंदर असेंबल्ड वर्ड का मीनिंग क्या है? तो इसको हम बोलते हैं मूव्ड अवे नहीं. कलेक्टेड यस. वर्क टुगेदर नहीं. तो कलेक्टेड इज द आंसर. नेक्स्ट है फ्रॉम द वर्ड assembled remove the last two letters. Add one letter to make a word which means a time at the school when the whole school gathers. देखो इसके अंदर एक वर्ड है assembled के अंदर लास्ट 2 वर्ड्स आपको इसमें रिमूव करने हैं और उसके बाद आपको वर्ड मेक फॉर्म करना है. तो इसमें आएगा असेंबली. ASSEMBLY. असेंबली इज द वर्ड. ओके. गिव द सुटेबल टाइटल. आप इसके अंदर आपको एक टाइटल प्रोवाइड करना है. देखो इसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन में कोई भी टाइटल प्रोवाइडेड नहीं है. तो आप क्या टाइटल इसमें देना चाहोगे? आप इसमें बोल सकते हो हंग्री बॉयज. आप बोल सकते हो क्रूअल मास्टर. तो कुछ भी आप राइट कर सकते हो इसमें. आप अपने अकॉर्डिंग आप इसका टाइटल फॉर्म करो. क्या आपको पसंद आता है? हंग्री बॉयज. Next is let's write. To learn means to understand or to gain knowledge. To teach means to show how or to explain. Complete the following sentences using the correct form of teach or learn. तो इसके अंदर कुछ आपके हिंट्स दे रखे हैं. उसके बाद आपको नेक्स्ट आगे क्वेश्चंस करने इसके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं वो वाले हिंट्स यूज करके. तो विल यू डैश मी चेस. तो आप इसमें लिखोगे विल यू टीच मी चेस. मिस्टर शर्मा डैश क्लास 8. तो आप इसमें लिखोगे मिस्टर शर्मा टीचेस क्लास 8. माई स्टूडेंट्स हैव डैश अबाउट रोड सेफ्टी. तो आप इसमें लिखोगे लर्न. माई सिस्टर हैज डैश मी हाउ टू राइड अ हॉर्स.
तो आप इसमें लिखोगे taught, मेरी सिस्टर ने मुझे taught किया, T-A-U-G-H-T, taught me how to ride a horse. I have learned some of the customs of India. Learned. I dash how to cycle when I was just 4 years old. I learned. Next is take out page number 76 and this is the last question of the chapter. इसके अंदर आपको क्या करना है, पास्ट फॉर्म्स, यूज पास्ट फॉर्म्स इन द पैराग्राफ. इस पैराग्राफ में आपको पास्ट फॉर्म्स का यूज करना है. तो ऑल द क्लास 5 स्टूडेंट्स ऑफ अवर स्कूल, तो इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं वर वॉज, तो इसमें कौन सा आपका पास्ट फॉर्म है. तो ये आपका लास्ट ईयर आपने क्लास 4th में ये पढ़ा था कि पास्ट फॉर्म्स कौन से होते हैं. तो इसमें आप राइट करोगे WERE. तो आगे है वर गैदरिंग इन फ्रंट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफिस, दे डैश गोइंग फॉर द इंटर स्कूल रेस. दे वर. द बस डैश बस arrived. The bus arrived and they dash for the stadium. They left. The runners were dash to the starting point. आप इसमें क्या राइट करोगे, taken. Taken to the starting point. The runners dash their positions. The runner took. Next is Sir dash the whistle, blew the whistle. One student of our school dash fast. One student of our school ran fast. Ran fast and dash first and came first. Everyone dash their best. So everyone did their best. Did their best. And our school dash the trophy and our school won the trophy. Everyone dash joyous. So everyone felt joyous. Okay, and this ends with the chapter. There is one more question in this. Read the following sentences. Bhaiya have been studying in the same class for 2 years. Munna was flying kites since morning from a time in the past till the present. Fill in the blanks using for and since. तो इसके अंदर for और since के words आपको यूज करने हैं और इनके blanks कंप्लीट करने हैं. तो आप इसमें क्या लिखोगे, फॉर और सिंस के वर्ड्स आप यूज करोगे. आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस आई वॉज अ बेबी. दिस बिग जार हैज बीन इन आवर फैमिली मैनी ईयर्स, यानी फॉर मैनी ईयर्स. दिस इज द डैश फॉर मैनी ईयर्स. The old banyan tree in the village has been there in the last 200 years. तो इसमें आएगा for there for the last 200 years. तो यहाँ पे हम राइट करते हैं for. Nobody has seen him dash yesterday. That is since. Fine. तो these were the questions. आगे भी हैं अभी I think. No, this is the project work. This you have to do it yourself. इसमें है choose a story that you like. आप एक story choose कीजिए जो आपको पसंद हो. In groups
ऑफ फोर, आप फोर स्टूडेंट्स आप इकट्ठे मिलके आप एक स्टोरी फॉर्म करो. राइट डाउन डायलॉग्स फॉर द स्टोरी एंड मेक इट इनटू अ शॉर्ट प्ले. एक स्टोरी सेलेक्ट करो, फोर पीपल आप मिलके, और उसके बाद उसके राइट करो डायलॉग्स स्टोरी के लिए, और उसके बाद उसको शॉर्ट प्ले में उसको फॉर्म करो. यू मे देन प्रेजेंट इट इन द क्लास. आपको क्लास में बहुत मजा आएगा, बहुत इंजॉय करोगे सब लोग मिलके. इस तरह से आप एक शॉर्ट प्ले आप प्ले कर सकते हो. एंड दिस एंड्स विद योर चैप्टर नाउ. सो थैंक यू सो मच. स्टडी हार्ड.